Good evening, everybody. Good evening, all the panelists and speaker and all the attendees for the day. As we know that today we have expert speaker, Mr. Jagdeep Singh, for the topic simultaneous heating and cooling. And we are grateful to them that they have taken out the time in his busy schedule. We are thankful for all the annual partners, Platinum partner Armacell, Gold partner LB Reflex KSB, Silver partner Syscam Advanced Valve, Mavex, annual partner Andrews Hydro, Paramount Polytreat, K-Flex, and membership partner Standard Refrigeration to support this program. Further, I request Samta Bajaj ma'am to introduce the speaker, Mr. Singh, for the day. And it's over to you, ma'am. Yeah. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm Samta Bajaj, and first I must say I'm very much pleased to join this much awaited and required knowledge sharing session today. On behalf of ISHRE, I take the privilege to introduce our speaker, Mr. Jagdeep Singh, who also happens to be a dear old colleague of mine when we worked together in Blue Star. Jagdeep, in fact, needs no introduction to most of the audience present here today, since he has been one of the main proponents of ISHRE for several years now. He has served and is still actively involved in society. He is past president, Delhi chapter of ISHRE, served as national treasurer, vice chair marketing ISHRE, regional director North, and national vice chair advocacy. And as regards his professional qualifications, he is BE Mechanical from JMI, MBA from FMS Delhi University, and has done export marketing from IIFT. He has around 25 years of very rich experience, having worked in organizations like Hindustan Motors, Blue Star, Breyer, Armacell, Clima Vineta, and presently successfully running two companies, namely Agape Ecotech and Rosemax Ecotech, which are into HVAC, geothermal, radiant heating and cooling, adiabatic condensers, energy recovery, industrial and commercial projects across the country. So, friends, today's session is on a very, very relevant topic, which is simultaneous heating and cooling, which is a requirement of many building and process applications like pharmas, data centers, and hospitals. The conventional way of doing this is to have a separate heating and cooling equipment, which, however, becomes an expensive affair requiring a chiller and a boiler simultaneously, and also requires four-pipe system that is supply and return with each of the cooling and heating equipment. However, water source heat pumps are a good solution which can switch between heating and cooling mode with only one supply and one return pipe. Mr. Jagdeep has a great understanding and expertise on the subject, having designed and executed several such systems. So without further ado, please join me to welcome Mr. Jagdeep for this valuable session. Over to you, Jagdeep. Am I audible? Hello. Yes, Yes, sir. Okay. Thank you. Thank you, Samta, for the wonderful introduction. And you said some very nice words, although a lot of them I'm not worthy of, but still, thank you so much for that. I'd like to thank ISHRE for giving me this opportunity to share some knowledge on a very pertinent and important subject. And I'm sure the people who have joined this session will take a note of it. And my request to them is that please don't just hear what we say, listen. And even if one of you implements this technology or a similar technology anywhere in the country, even if one project saves energy, then this particular interface has done its job. So my request to all the listeners is that whatever you listen, if you don't understand, please ask questions, but please don't go back without understanding. It's a very pertinent area, very critical today, very important. And the world has already moved into this direction. We are also moving in this direction, although our pace is a little slow. But I will share you some very interesting examples where it has been implemented within our country and people are benefiting a lot with this. So try and empathize that and try and also involve such technology in your own projects. Now, I'll just share my screen. Please tell me if you can see my screen. Please keep me
me the feedback. Can you see my screen, sir? Yes, sir. Perfectly fine. So somebody from ISHRE, please keep telling me, because in a live presentation you're able to actually see, but here we are not. The screen is visible, sir. Achha, and also the arrow. Yeah, it's also Okay. coming. Great, Fine. great. Thank you. Okay. So we're talking about simultaneous heating and cooling. क्या मतलब है इसका, कैसे ये इस्तेमाल होता है, कहाँ ये इस्तेमाल होता है, इसके बारे में कुछ बात करेंगे. इंटरेस्टिंग है, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं. आजकल लोग बात कर रहे हैं कि देयर इज यूक्रेन वॉर गोइंग ऑन एंड देयर इज एनर्जी क्राइसिस इन यूरोप. अब people are talking that in Europe you can either. Okay, first the disclaimer before I go into my presentation. So just take a second to read this. Okay. इसका मतलब ये है कि आप जो भी सुन रहे हो अपनी अपनी जिम्मेवारी पे सुन रहे हो, हमारी जिम्मेवारी नहीं है. चलिए आगे चलते हैं. आज यूरोप में in the advanced countries of Europe, people are being forced not to iron clothes. Can an oven, they bake food, they don't make chapatis. Their amount of oven use is limited today. The amount of they can't even take baths because they need hot water for that and they don't have energy for that. Now ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बाइडेन साहब जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, he said that we have to prevent Russia and we have to control Russia, so stop buying things from Russia. Now Russia is selling gas to them, Russia is selling oil to them, which is running their homes, which is running their factories, and indirectly they have hit themselves. Ab advantage kisko hua? Advantage came to countries like India and China. So we are getting fuel at lower cost, we are getting gas at lower cost, China is getting it at lower cost because Europe is not buying. So Russia has reduced the rates and we are getting it and we are taking advantage. But एक बात ध्यान रखिए, अब all the European countries are standing against Biden's decision. They said, why should we suffer because of your decision? Or sooner or later, they are going to resent that and they are going to start buying oil back from Russia and gas. Now, when that happens, this low-cost gas and oil that is currently being available to India will no longer be available. So if that happens, there might be crisis shifting to other countries like India or China. So we are currently a little safe, but not for long. This gas and energy variations is not just because of the war, it is because of massive manipulations by various corporate organizations across the world. आपने अभी जो स्टील के प्राइसेस का वेरिएशन देखा आपने. In fact, this variation, which is not based on market economics and fundamentals, are being manipulated by various organizations and even countries for their own advantage. So sooner or later, we'll also be hit. We were hit by this steel price fluctuation. A lot of projects went haywire, a lot of projects got stalled because of that. And that could happen to energy also in India. So it's not that problem सिर्फ वही रहेगी, problem हमारे पास भी आ सकती है. तो हम लोग एनर्जी सेविंग के लिए क्या करते हैं? We try and चलो भाई सारे बल्ब बदल देते हैं, सारी लाइटिंग को एलईडी कर देते हैं. एक बिल्डिंग का कितना % एनर्जी आप बचा लोगे उससे? 1%, 1.5%, उससे भी कम. आप कहते हैं नहीं, मैं HVAC इक्विपमेंट चिलर्स को मैं हाईएस्ट एफिशिएंसी चिलर्स लगा देता हूँ. कितना % एनर्जी बचा लेंगे आप 60% एनर्जी अगर एयर कंडीशनिंग की है, so if you save 5% of the chiller, if you shave it off, and then 60%, it's 3% of the total energy building. Now you can work on the glass, you can work on insulation, you can work on all these things. These things are very important. You have to do them.
बट मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सबसे बड़ी प्रॉब्लम को क्या आप नजरअंदाज कर रहे हो? ये तो करना ही है, लेकिन इससे बड़ी जो आप एनर्जी वेस्टेज कर रहे हो, क्या आपने उस पर ध्यान दिया? क्या आपने, आप जब कोई चीज साफ करते हो सबसे बड़ा कचरा पहले उठाते हो या सबसे छोटा? क्या आपने सबसे बड़ी वेस्टेज सेव कर ली? चलिए मैं आपको बताता हूं आप क्या बचा सकते हो. व्हाट कैन यू सेव? यू कैन सेव व्हाट यू वेस्ट. सो व्हाट डू यू वेस्ट? यू वेस्ट वाटर. उसको बचाना है, आपने उसके लिए STP ETP लगाएंगे. लेकिन जब आप एयर कंडीशनिंग करते हैं, आप अंदर की हीट, एक रूम की हीट को निकाल के एनवायरनमेंट में फेंकते हैं या कूलिंग टावर में डालते हैं जिससे वाटर इवापोरेट करते हैं. आप जियोथर्मल यूज कर सकते हैं, उसको सॉइल में डाल सकते हैं. लेकिन आप कुछ वेस्ट कर रहे हैं विच इज हीट. लेकिन उसी बिल्डिंग में आप गैस बर्न करेंगे खाना बनाने के लिए, आप इलेक्ट्रिसिटी बर्न करेंगे पानी गर्म करने के लिए, नहाने के लिए, आप RH के लिए, रीहीट के लिए आप हॉट वाटर जनरेट करेंगे या इलेक्ट्रिकल फायर करेंगे उसको, या किसी प्रोसेस इंडस्ट्री में तो बहुत ज्यादा हीटिंग की जरूरत पड़ती है. तो कितना ये इसमें हिपोक्रेसी है हमारे डिजाइन में कि एक तरफ मैं बिल्डिंग की हीट निकाल के उसको बाहर फेंक देता हूँ, एनवायरनमेंट को और हीट कर देता हूँ, अपनी सिटी का हीट आइलैंड इफेक्ट बढ़ा लेता हूँ, मेरे टेम्परेचर सिटी का बढ़ जाता है, मैं आई क्रिएट मैसिव प्रॉब्लम्स फॉर दी होल सिटी. बट मेरे को उसी बिल्डिंग में हीट भी चाहिए. एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ. एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसका मैं आपको एग्जांपल आगे भी दिखाऊंगा अभी उसकी पिक्चर्स के साथ. उनकी एक बिल्डिंग में हाई प्रेशर डाई कास्टिंग था. हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में जब वो कास्ट करते हैं कंपोनेंट्स को, तो वो गर्म होते हैं, उसको ठंडा करना होता है. उसको ठंडा करने के लिए उन्होंने एयर कूल्ड चिलर्स लगा रखे थे. तो पानी जाता था अंदर और वो 7-12 डिग्री पे पानी प्रोड्यूस करते थे. एक PHE लगा रखा था, उससे वो पानी थोड़ा सा और टेम्परेचर रेस करके 12 डिग्री या 15 डिग्री अंदर भेजते थे, वो वापस आता था कोई 20 डिग्री पे. और उसकी नेक्स्ट बिल्डिंग में उनका पेंट शॉप था. इन द पेंट शॉप they had to heat various components of the paint from 60 degrees to 85 degrees. अब वो हीट करने के लिए उन्होंने एक बॉयलर लगाया, बॉयलर से स्टीम बनाई, स्टीम की पाइप अंदर गई, अंदर PHEs लगे हुए थे, एक साइड स्टीम आती थी, दूसरी साइड वो फ्लूइड आता था, गर्म होके वो प्रोसेस में चला जाता था. बहुत अच्छा काम कर रहा था. तो हम उनके लिए एक जियोथर्मल सिस्टम लगा रहे थे. तो हमने उनसे पूछा, भाई ये आपकी 2 बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग में से आप हीट निकाल के एनवायरनमेंट में फेंकते हो, बिजली लगाते हो उसके लिए, और दूसरी बिल्डिंग में आप गैस बर्न करके उस हीट को प्रोड्यूस करते हो और अंदर यूज करते हो. हमने आपके टेम्परेचर स्टडी कर लिए हैं. अगर हम आपकी जिस बिल्डिंग में कूलिंग की जरूरत है वहां से हीट निकालें, उस हीट का टेम्परेचर रेज करें और आपकी दूसरी बिल्डिंग में दे दें, तो आप इंटरेस्टेड हो गए? उनको आइडिया तो बहुत अच्छा लगा. उनको कहते ये तो काफी सेंसिबल बात है, लेकिन अभी पहले कभी ऐसा किया नहीं था, तो इसलिए उनको स्टडी करना था. 6-8 महीने लगा दिए स्टडी करने में. फिर जी दे सेड लेट्स डू इट. तो सर हमने एक इक्विपमेंट लगाया जो एक तरफ कूलिंग कर रहा था, वो हीट पिक करता, और दूसरी तरफ वो हीटिंग कर रहा था, वो हीट रिजेक्ट करता. एंड इन दिस प्रोसेस अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी और आप हीटिंग एनर्जी को कंबाइन करके जो गैस एनर्जी वो जो यूज करते थे, उसको अगर मैं सेविंग में देखूं, तो वी वर एबल टू सेव ऑलमोस्ट 68% एनर्जी. 68% एनर्जी. तो मैं आप लोगों को आज फिर आपने इशरे की स्लाइड देखी, पृथ्वी, पर्यावरण और परिवर्तन. मैं आप लोगों को प्रोवोक कर रहा हूं, परिवर्तन लाइए. ये जो स्टैंडर्ड डिजाइन है ना, कि इसको यहाँ पे HU लगा दिया, यहाँ पे ये लगा दिया, एक स्टैंडर्ड सा जो पिछले 20 साल से चल रहा है, उसी को ठोक दो हर जगह, ये बंद करना पड़ेगा. क्योंकि हम
देयर आर वेरी वेरी स्मार्ट डिजाइन, थोड़ी सी समझ की जरूरत है, और हम हिंदुस्तानियों में समझ बहुत है। तो प्लीज जो हमको भगवान ने गिफ्ट दिया उसको इस्तेमाल करके we can make some wonderful designs and we can show the world that what we are made of. And this is no rocket science. मैं भी आपको शेयर करूंगा, आपको खुद लगेगा यार ये तो सिर्फ कॉमन सेंस पे बेस्ड है, इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी अक्ल लगानी है। एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री की मैंने आपको बात करी, वो तो मैंने एग्जांपल आपको बता दिया। एक होटल हॉस्पिटल ले लो, उसमें आपको गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, आपको किचन के लिए गर्म पानी चाहिए। आप हॉस्पिटल ले लो, उसको किचन और नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, उसको आरएच कंट्रोल के लिए, रीहीट के लिए गर्म पानी चाहिए। फार्मा ले लो, फूड ले लो, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग देख लो, उसमें पहले चॉकलेट को मेल्ट करते हैं, गर्म करते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं। तो जो जहां ठंडा कर रहे हैं वहां से हीट पिक करके पहले वाले प्रोसेस में जहां हीट कर रहे हैं उसको दे दो। डेयरी ले लो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स ले लो, हॉस्टल्स ले लो, देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस। आप एक सोसाइटी ले लो, एक सोसाइटी में आपका जो लिफ्ट, जो आपका कॉमन लॉबी एरिया है, उसकी कूलिंग से आप पानी गर्म कर दो पूरी सोसाइटी के लिए, फ्री में गर्म पानी मिल जाएगा उसको। वो कितने गीजर लगते हैं, अगर एक सोसाइटी में 1000 फ्लैट है, एक फ्लैट में 3 रूम है, तो 3 उनके हर एक के साथ अटैच बाथरूम होता है, 3 किलोवाट इंटू 3, 9 किलोवाट इंटू 1000, 9 मेगावाट की जो कनेक्टेड लोड है आप खत्म कर सकते हो, सिर्फ जो उनकी लॉबी कूलिंग से फ्री हीट आप दे सकते हो ऊपर। एक टैंक लगा दो, उसमें गर्म पानी फ्री में मिल जाएगा पूरी सोसाइटी। कोई करता है? नहीं। क्यों? ये भी मुझे पता नहीं, ये तो हम सबको सोचना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप अभी समझ लेंगे उसको। डेटा सेंटर्स इतनी हीट प्रोड्यूस करते हैं और विंटर्स में भी प्रोड्यूस करते हैं, और जो ऑफिस एरियाज होते हैं डेटा सेंटर्स की, उनकी हीटिंग की जरूरत होती है, उसको बस स्टार्ट यूजिंग, रिमूविंग दैट हीट फ्रॉम देयर एंड यूज इट फॉर हीटिंग। रेस्टोरेंट्स हैं, एक विंटर में हॉस्पिटल में जो सेंटर एरिया होता है ना, उसको कूलिंग की जरूरत होती है ओटीज में, और जो उसकी पेरिफेरी एरियाज होती हैं उसमें हीटिंग की जरूरत होती है। तो हम विंटर्स में सेंटर को कूल करके उससे जो हीट निकल रही है उससे पेरिफेरी को हीट कर सकते हैं। सिंपल लॉजिक है, और इतनी एनर्जी बच सकती है कि आप भौचक्के रह जाएंगे, यू विल बी ज़ैप्ड हाउ मच एनर्जी कैन बी सेव्ड। अब देखिए, जब भी हम एयर कंडीशनिंग करते हैं, हम एक हीट पंप, वाटर सोर्स हीट पंप्स क्या होते हैं, हीट पंप्स जो वाटर सोर्स होते हैं वो बाहर अगर बिल्डिंग से हीट निकाल के या तो बाहर रिजेक्ट करते हैं कूलिंग टावर में या जियोथर्मल में, और विंटर्स में वो बाहर की हीट पिक करके फ्रॉम द सॉइल जियोथर्मल सोर्स दे इंक्रीज द टेम्परेचर एंड हीट द बिल्डिंग। तो वो रिवर्सिबल मोड में चल सकते हैं, या तो वो कूलिंग मोड पे चल सकते हैं या वो हीटिंग मोड पे चल सकते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड वाटर सोर्स हीट पंप होता है। और एक एयर सोर्स हीट पंप होता है, वो सिंपली एयर के साथ करता है, वो एयर से हीट पिक करता है विंटर्स में और आपको अंदर बिल्डिंग को गर्म कर देता है, जैसे हम लेह में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे कर रहे हैं, और श्रीनगर में अभी एम्स श्रीनगर डिजाइन कर रहे हैं, उसी तरह से एम्स श्रीनगर में हम वी आर यूजिंग जियोथर्मल एंड रेडिएंट एंड अदर टेक्नोलॉजीज। एंड एयर सोर्स में विंटर समर्स में आप जो अंदर से गर्मी उठाते हो, हवा में फेंक देते हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितनी भी आप कूलिंग कर रहे हो उसकी हीट अगर आप बिल्डिंग में कंज्यूम कर सकते हो तो उसको पहले कंज्यूम करो। अगर आप हीटिंग कर रहे हो तो जितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है उस बिल्डिंग में, पहले उससे हीट निकालो। जो बैलेंस बचता है उसमें एक्सटर्नल सोर्स यूज करो। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको इतनी एनर्जी सेविंग मिल जाएगी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सबसे पहले मैं वो ऑटोमोबाइल फैक्ट्री की बात करता हूँ जिसमें मैंने आपको बताया कि ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये हमने एक छोटा सा प्लांट रूम बनाया उस इक्विपमेंट के लिए। उसके पीछे जो बिल्डिंग है, आप मेरा एरो देख पा रहे हैं, तो कोई एक बंदा फ्लैग रेज कर दे, मुझे समझ में आ जाएगा। ये जो पीछे पाइप जा रहे हैं ये इस बिल्डिंग में जा रहे हैं। इस थैंक यू ट्रिना फॉर रेजिंग योर हैंड। एंड इसमें ये जो पीछे लगा हुआ ये हाई प्रेशर डाई कास्टिंग का यूनिट है, और ये जो इसकी अगली बिल्डिंग है, ये यहाँ पे ये वाली बिल्डिंग है पेंट शॉप। ठीक है साहब, यहाँ पे ठंडा कर रहे हैं और हीट एनवायरनमेंट में फेंक रहे हैं, यहाँ गर्म कर रहे हैं और यहाँ पे एक बॉयलर लगा रखा है।
देख लो साहब, मेरे को तो समझ में नहीं आई बात। तो हमने एक ऐसा इक्विपमेंट लगा दिया। इस इक्विपमेंट में इसको बोलते हैं हाई टेम्परेचर हीट पंप। ये इसकी कैपेबिलिटी है पानी को 85 डिग्री गर्म करने के लिए। इसमें 4 पाइप लगे हुए हैं, 2 पाइप ठंडा पानी और 2 पाइप गर्म पानी। तो ये जो टैंक है, इसमें हम गर्म पानी डाल के वो पेंट शॉप में भेजने लग गए, और 2 पाइप हम इसमें इसको हम HPDC हाई प्रेशर डाई कास्टिंग भेजने लग गए, और 2 पाइप हम पेंट शॉप में डालने लग गए। तो ये पीछे वाले 2 पाइप, ये चिल्ड वाटर इन, ठंडा वाटर इन एंड आउट, इससे हम 12 डिग्री बाहर भेज रहे थे, और वापस जो आ रहा था 17 डिग्री आ रहा था। और यहाँ से हम 83 डिग्रीज भेज रहे थे, और वापस जो आ रहा था हमारे पास कोई 75 या 73 डिग्री वापस आ रहा था। एंड ये हमने पूरी पाइपिंग करी, कोई 3.5 किलोमीटर पाइपिंग करी पूरे प्लांट में। पाइपिंग काफी एक्सटेंसिव थी, वर्किंग प्लांट था, बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने कर दिया उसमें। ये जो है ये पेंट शॉप है। ये पेंट शॉप के अंदर यहाँ पे पीएचईज लगे हुए हैं, ये देखिए आप पीछे पीएचईज लगे हुए हैं। और इन पीएचईज में वो गर्म पानी हीट पंप से आ रहा था 84 डिग्री पे, और ठंडा होके करीबन 75-74 पे चला जाता था, और दूसरी साइड फ्लूइड आता था जो गर्म हो जाता था। तो ये देखिए ये सब पीएचई लगे हुए थे, इन सब में हमने अपनी पाइपिंग कनेक्ट कर दी। वर्किंग प्लांट था सर, बहुत टफ था, क्योंकि हमें काम प्लांट चल रहा था, हमें पहले अपनी पूरी पाइप लगानी पड़ी वर्किंग प्लांट के अंदर। और जब उनकी शिफ्ट नहीं होती थी तो रात को काम करते थे। दिन में वो उनकी 2 शिफ्ट चलती थी, तब सी शिफ्ट होती थी रात को, कई बार 10 बजे शुरू करते हैं, सुबह 4 बजे तक, सुबह 6 बजे तक। तो एग्जिस्टिंग पाइपिंग के साथ साथ नई पाइपिंग लगाई, नई पाइपिंग को पूरा रेडी कर लिया। फिर जब उनको शटडाउन मिला, हमको 4 दिन का शटडाउन मिला पूरा सिस्टम को चेंज ओवर करने में। कम से कम हम 20-22 घंटे दिन में काम करते थे, और इसको चेंज ओवर किया और सक्सेसफुली कर दिया, और नए सिस्टम पे इसको मूव कर दिया। ये वो जो है ये डाई कास्टिंग यूनिट है, जहां पे हम ठंडा पानी भेज रहे थे। ये देखिए वो ठंडा पानी जा रहा है मोल्ड के अंदर। ये दिस इज कमिंग फ्रॉम दैट हीट पंप, and this water is going and cooling the molds. So the system was converted from the old system of chillers plus boilers to this new system in a matter of 4 days. हमको पूरा सिस्टम लगाने में करीबन 3-3.5 महीने लगे, और इट वाज टफ, मतलब आसान नहीं था। तो क्या बचा? ये था इनका इंस्टॉल्ड सिस्टम सर। 220 टन के इनके चिलर लगे हुए थे, एयरकूल्ड डाइकिन के थे। उनकी एनर्जी जो 7 साल की जो थी, वो करीबन 1.5 करोड़ रुपए बिजली लगता था साल का। और हीटिंग जो वो गैस से करते थे, वो करीबन 4.5 करोड़ रुपए उनका, सॉरी 3 करोड़ रुपए करीब उनका खर्चा आता था। टोटल मिला के जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था वो 4.5 करोड़ रुपए का उनका एनर्जी कॉस्ट था। जब ये सिस्टम हमने चेंज कर दिया, हमने साइमल्टेनियस हीटिंग एंड कूलिंग लगा दी। तो कूलिंग टेम्परेचर और हीटिंग टेम्परेचर ये थे। और आप ये देखिए 220 टन इज अप्रोक्सीमेटली 700 और 800 किलोवाट्स। जो इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें डालते हो वो 800 के साथ ऐड हो जाती है, और उतनी आपको हीट बाहर मिल जाती है। तो ये हमारा पावर इनपुट था। एंड हमारा साल का खर्चा 4.5 करोड़ से 2 करोड़ 64 लाख पे आ गया, और 1 करोड़ 86 लाख रुपए साल के बचने लग गए। ये गैस का, ये मैं तब का ले रहा हूं जब गैस का रेट 45 रुपए था। आज रेट क्या है? 80 रुपए है, शायद 90 रुपए है शायद। आज के रेट में उनकी जो सेविंग है, ये देखिए 3 करोड़ का आपका हो जाएगा ऑलमोस्ट 6 करोड़, 6 और 1.5 7.5 करोड़। और हमारी जो कॉस्ट है वो वही है 2.64, 7.5 माइनस 2.64, दिस हैज बिकम 5 करोड़ नाउ। दिस इज द ओल्ड रेट। आपको गैस का रेट अभी पता होगा, जो अपनी सीएनजी गैस चलाते हैं उनको पता होगा कि क्या रेट हो गया है। पहले 45 रुपए पे लेते थे, आज क्या लेते होंगे, दे नो दैट। सो और उन्होंने खर्चा कितना किया पूरे सिस्टम लगाने में, जिसमें कोई 3-4 किलोमीटर की पाइपिंग थी, पंप्स थे, बड़े 90 किलोवाट वाले पंप्स थे, ये इक्विपमेंट था। उन्होंने खर्चा किया 3 करोड़ रुपए, और उनकी सेविंग कितनी हो रही है? 5 करोड़ रुपए पर ईयर, मतलब 6-8 महीने में पेबैक। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप लोगों को अब ये जो मोटे मोटे नुकसान हो रहे हैं ना हमारे, इन पे ध्यान देना है। अभी मैं, ये तो एग्जाम्पल था जिसमें मेरी एनर्जी बैलेंस मेरे को मिला हुआ था, क्योंकि ये सिस्टम 100% पीक पे चल रहा था।
मैं आपको और भी एग्जांपल बताता हूँ। एक ये होंडा की फैक्ट्री में हमने काम किया था। ये इनका ये आप ब्लॉक देख रहे हो, ये इनका एडमिन ऑफिस है, और ये आप जो ब्लॉक देख रहे हो ये इनका यूटिलिटी ऑफिस है। ये सारा प्लांट है। यहाँ पे वो आपकी मोटरसाइकिल और स्कूटर आप चलाते हैं जो, वो यहाँ बनते हैं। तो भाई ये एडमिन में और इसमें वीआरएफ लगा हुआ है। उन्होंने बोला जियोथर्मल करना है, हमने कहा ठीक है जियोथर्मल करते हैं। और जियोथर्मल में हम इस वाले ये जो ग्रीन एरिया है इसमें हम अपने बोर होल्स करने वाले थे, और यहाँ से वर्टिकली बोर होल्स नीचे लाके इसको हम इसके साथ और इसके साथ कनेक्ट करने वाले थे। तो जब डिस्कशन हो रही थी तो वहां के एक प्लांट सीनियर थे, बहुत इंटेलिजेंट आदमी, मिस्टर पंकज टंडन, उन्होंने कहा भाई हम यहाँ पे चारों तरफ ये जो अपनी बाउंड्री है यहाँ पे हम कोई 12 बोरहोल करने वाले हैं, एंड यूजिंग दैट बोरहोल दैट वाटर विल बी फर्स्ट ट्रांसफर्ड टू दिस एरिया। यहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट था इनका। फिर ये ट्रीटमेंट प्लांट के बाद ये अंदर जाएगा इन द असेंबली एरिया, बिकॉज जो भी कंपोनेंट्स पहले बनते हैं उनको क्लीन किया जाता है बिफोर असेंबली। तो ये पानी को हम हीट करते हैं और फिर इसको पूरे प्लांट में डालते हैं। क्या आप ये पानी इस्तेमाल कर सकते हो? मैंने उनसे पूछा कि ये पानी, ये जो वाटर है, आर यू गोइंग टू गिव इट टू मी कंटिन्यूसली, या आप इंटरमिटेंट होगा, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा? कहते नहीं, ये दिन के 12 घंटे पूरे चलेगा। मैंने कहा आपके ऑफिस कब चलेंगे? कहते 12 घंटे। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, ये जितनी भी एयर कंडीशनिंग की हीट है मैं इसमें रिजेक्ट कर दूंगा, और ये प्री हीटेड वाटर आपके ट्रीटमेंट में जाएगा और फिर आपको यहाँ यूज हो जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट को साहब 2 अवार्ड मिले। द मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट 2019 में सीआईआई एनवायरमेंटल बेस्ट प्रैक्टिसेस अवार्ड, इसको 2 मोस्ट इनोवेटिव प्रोजेक्ट और मोस्ट यूजफुल प्रोजेक्ट अवार्ड मिला। वी आर very happy to share this with you, but we did something unique and we got 2 awards for this. और हमने फिर बोरवेल्स का हम ही कर देंगे आपके लिए। हमने इनके बोरवेल्स किए, एक हीट एक्सचेंजर जनरेट किया इनके टॉप ऑफ द प्लांट्स, दोनों एडमिन ऑफिस और यूटिलिटी ऑफिस के ऊपर। ये अंदर हमने सिस्टम लगाया जो वाटर सोर्स सिस्टम था, इसी के अंदर कंप्रेसर था। हर एक बिल्डिंग की टॉयलेट्स में ये यूनिट्स लगा दिए, टॉयलेट्स के फॉल सीलिंग के ऊपर, और इसको कनेक्ट कर दिया थ्रू रेफ्रिजरेंट टू द इंडोर यूनिट्स। ये हमने लगा दिया। ये होंडा की जो एडमिन ऑफिस का रिसेप्शन है। ये जियोथर्मल हीट एक्सचेंजर जो हमने टॉप पे लगाया। अब इसमें भी साइमल्टेनियस हीटिंग एंड कूलिंग हो रही है। जो मेरी ऑफिस है उसको कूलिंग हो रही है, और जो मेरा पानी है उसकी हीटिंग हो रही है। और ये सारी पाइपिंग वगैरह इसमें काफी करनी पड़ी हमें। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था उनका वीआरएफ का एनर्जी कंजम्पशन साल का था करीबन 3.25 लाख रुपए। जब वो जियो थर्मल सिस्टम लगने लग गए साइमल्टेनियस हीटिंग कूलिंग के साथ, तो बिजली का बिल जो है वो 1.25 लाख रुपए नीचे आ गया। सॉरी, यूनिट्स, ये कोई 11 लाख रुपए, ये यूनिट्स हैं। ये दीज आर नॉट रुपीज, दीज आर यूनिट्स। 1.25 लाख, 1,16,000 यूनिट्स नीचे आ गए। एंड जो 11 लाख रुपए उनका, 11.5 लाख रुपए उनका साल का सेविंग शुरू हो गया। जो गैस की उनकी यूनिट्स की बचत हुई वो करीबन 28,000 SCM हुआ, 28,250 SCM हुआ, और वो सेविंग करीबन 2.25 लाख रुपए। ये फिर वही पुराने रेट्स में, ये 45 रुपए के रेट्स में। अगर मैं 90 में करता हूं ये 50 लाख हो जाता है। ठीक है, तो 50 प्लस 11, 61 लाख रुपीज इज व्हाट दे आर सेविंग इन अ ईयर। और खर्चा कितना किया इस पे उन्होंने? 55 लाख रुपीज। तो 11 महीने में पूरा सिस्टम ने पे बैक कर दिया। अब जो नेक्स्ट 20 इयर्स है, हर साल ये 61 लाख रुपीज बचने हैं, और वो जो पहले वाले सिस्टम में हर साल 5 करोड़ रुपए बचने हैं। 7.5 में से 5 करोड़, सो दैट इज अ ह्यूज सेविंग। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग एज 75% सेविंग। हम टेक्नोलॉजी चेंज करते हैं, हम इतना इक्विपमेंट चेंज करते हैं, 2-3% के लिए हम इतना खर्चा करते हैं। ये these are the biggest savings that you can do. अब ये जो हमने सिस्टम देखे थे इसमें तो सिस्टम बैलेंस था भाई, जितना मेरे पास कूलिंग लोड है उतना हीटिंग लोड है। अब हर जगह तो ऐसे मिलेगा नहीं, लोड तो वेरी करेगा ना सर। आपका कूलिंग लोड दिन में भी वेरी करेगा, सीजन में भी वेरी करेगा, आपका हीटिंग लोड भी वेरी करेगा, कभी ज्यादा चाहिए कभी कम चाहिए। जब हमारे दोनों लोड वेरी कर रहे हैं तब इसको कैसे इस्तेमाल करें? इसमें भी है सर, वी हैव सॉल्यूशंस। आप परिवर्तन करने को तैयार होइए, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। अब एक बिल्डिंग में जनवरी में कूलिंग लोड सबसे कम होता है, 0 भी हो सकता है।
और हीटिंग लोड ज्यादा होता है। करीबन मार्च या अप्रैल के बीच में आके ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, बराबर का रहता है। उसके बाद हमारा कूलिंग लोड बढ़ने लग जाता है और हीटिंग लोड कम होने लग जाता है, जीरो भी हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग गर्म फिर भी इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में भी, कुछ लोग नहीं करते हैं। और आपका प्रोसेस है तो उसमें जरूरत रह सकती है। लेकिन एक हॉस्पिटल, एक होटल ले लो तो उसमें तो कूलिंग लोड रहता ही है। तो फिर आके नवंबर में आके फिर ये मैच कर जाते हैं, फिर हीटिंग लोड बढ़ जाता है, कूलिंग लोड बढ़ जाता है। तो जब आपका कूलिंग लोड ज्यादा है और हीटिंग कम है, तो आपने बिल्डिंग में से तो इतनी कूलिंग निकाल दी, बिल्डिंग ने इतनी कंज्यूम कर दी, लेकिन ये जो डिफरेंस है इसका क्या करोगे? सिस्टम कैसे चलेगा? जब आप पीक समर में हो, आपकी कूलिंग लोड तो इतनी है, आपकी हीटिंग लोड इतनी सी है, चलो इतनी तो हमने बिल्डिंग को दे दी, ये जो डिफरेंस है इसका क्या करोगे? क्या हमारे पास सिस्टम है जो ये जो वेरिएशन को भी हैंडल कर सकता है? लेट अस सी। ट्रेडिशनल तरीका क्या होता है हमारा? कूलिंग के लिए चिलर लगा दो, हीटिंग के लिए बॉयलर लगा दो, हॉट वाटर बॉयलर लगा दो, उसको गैस से चला दो, उसको इलेक्ट्रिसिटी से चला दो, उसको डीजल फायर कर दो। इससे दूर जाइए। अगर आपकी सिस्टम बिल्डिंग में दोनों है, इससे दूर जाइए, बिकॉज दिस इज व्हाट इज मेकिंग यू वेस्ट लॉट ऑफ एनर्जी। और जो आप कूलिंग के साथ हीट अपनी सिटी में फेंक रहे हैं ना, आज आप कहते हैं मेरी सिटी जो है, मैं 10-20-25 किलोमीटर सिटी के बाहर चले जाता हूँ, टेम्परेचर 5 डिग्री गिर जाता है। इसीलिए आप इमेजिन करिए, आपकी बिल्डिंग में 1000 टन की एयर कंडीशनिंग लगी हुई है। वो 1000 टन की बिल्डिंग की जो एयर कंडीशनिंग है, इट इज 1 टन इज इक्वल टू 3.5 किलोवाट्स ऑफ हीट। उसमें इलेक्ट्रिकल भी डाल दो तो 4.25 किलोवाट की हीट पर टन आप अपनी रोड पे फेंकते हो। तो 1000 टन है तो 4 मेगावाट हीट आपकी बिल्डिंग उस रोड पे फेंक रही है। अगली बिल्डिंग 5 मेगावाट या 3 मेगावाट, ऐसी हर बिल्डिंग एक हीट सोर्स बनी हुई है। ऊपर से हमारी जो व्हीकल्स हैं उनकी एग्जॉस्ट से हीट आ रही है, फिर जो सोलर हीट आ रही है वो ट्रैप हो रही है, वो भी आ रही है। तो इमेजिन करो यार, आप एक बिल्डिंग क्रॉस कर रहे हो, वो बिल्डिंग को आप देखो और उसको देखो तो देखो कि यार ये तो 5 मेगावाट का हीटर लगाया हुआ है हमने यहाँ पे। अगली बिल्डिंग में ये 6 मेगावाट का हीटर लगाया हुआ है, उससे छोटी बिल्डिंग ये 2 मेगावाट का हीटर लगाया हुआ है। तो आपने अपनी बिल्डिंग्स की हीटर लगा रखे हैं अपनी बिल्डिंग पूरे सिटी में, तो गर्म क्यों नहीं होगी? दूसरा, अगर आप उसको वाटर कूल्ड सिस्टम से यूज कर रहे हो तो पानी है आज आपके पास, पानी इज गोइंग टू बिकम सो स्केयर्स, आप अभी जैप होने वाले हो। अभी तो आप जो ट्रीटेड वाटर है ना, उसको आप हॉर्टिकल्चर में यूज करते हो और कूलिंग टावर में यूज करते हो। सर, मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज आर ट्रीटिंग इट टू ड्रिंक इट अगेन। जब आपको गवर्नमेंट बोल देगी, बहुत जल्द बोलेगी आपको कि साहब जो आप पानी हम आपको दे रहे हैं उसका आपने 80% पानी रीयूज करना है, हम आपको 20% ही पानी और देंगे, तब क्या करोगे? तब कहां से कूलिंग टावर के लिए पानी लाओगे? कि अभी सोचना पड़ेगा सर। बिल्डिंग बना के वो बिल्डिंग 30 साल चलनी है, बिल्डिंग 5 साल बाद पूरा सिस्टम चेंज नहीं कर सकते आप। अभी से सोचना पड़ेगा आपको इस बारे में। क्या कर सकते हो? सबसे पहले जो कूलिंग है उसमें से जितनी हीट निकाल सकते हो वापस जो अपनी हीटिंग रिक्वायरमेंट में यूज करो। उसके बाद जो बचे उसको कैसे यूज करना है? वी कैन यूज जियोथर्मल सोर्सेज, वी कैन यूज सीवेज वाटर। सर, एक रेलवे स्टेशन है, 5000 टन की एयर कंडीशनिंग हुई है उसकी, वो सिर्फ सीवेज वाटर पे चलता है कूलिंग और हीटिंग के लिए। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज में बाकी हीट फेंकनी पड़ेगी। आप सिर्फ बाहर नहीं फेंक सकते, क्योंकि वो वापस आपको आके ही परेशान करनी है, आपके परिवार को ही परेशान करना है। तो ट्रेडिशनल सिस्टम से दूर जाइए। स्मार्ट सोल्यूशन क्या है कि साहब एक सिस्टम लगाइए जो एक तरफ कूलिंग करे, एक तरफ हीटिंग करे। जब वो इस पॉइंट पे है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि जितनी कूलिंग की रिक्वायरमेंट है उतनी हीटिंग की रिक्वायरमेंट है, बैलेंस्ड है, सब कुछ ठीक। जैसे मैंने आपको 2 एग्जांपल पहले बताए, प्रोसेस में हो जाता है, मिल जाते हैं हमको बैलेंस सिचुएशंस, लेकिन हर जगह नहीं मिलते। तो अगर मैं इस पॉइंट पे हूं या अगर मैं इस पॉइंट पे हूं, तब मैं क्या करूंगा?
आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा स्मार्ट सोचना। एक हीट पंप क्या करता है सर, ठंडे एनवायरनमेंट में से हीट पिक करता है, उस पर हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, कंप्रेसर काम करता है और वो हाई टेम्परेचर पे रिलीज हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे आपका चिलर है, चिलर जो है आपकी बिल्डिंग में से 12 पे 60 डिग्री का पानी देता है, 12 आ जाती है तो मतलब 5 डिग्री आपका टेम्परेचर रेज हो गया, वो हीट आ गई। वो हीट को हमने प्रोसेस किया और उस हीट को हमने या तो एयर में छोड़ दिया या कूलिंग टावर में छोड़ दिया। तो सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास सुपर हीट अवेलेबल है, ये जो 3 और 2 के बीच में। तो सबसे पहले क्या कोशिश करिए, अगर आपकी हीटिंग रिक्वायरमेंट कम है तो एक ऑक्सिलरी सर्किट, जिसे हीट रिकवरी बोलते हैं, वो ये वाली हीट निकाल के उससे पानी गर्म करना शुरू कर दीजिए। इसमें आपने क्या किया, आपने जो हीटिंग, जो बाहर हीट फेंक रहे थे उसको कम कर दिया, एनवायरमेंटल डैमेज कम कर दिया, और जो गैस आप यूज कर रहे थे इस गर्मी, इसको पानी को गर्म करने के लिए या नहाने को गर्म करने के लिए, वो भी आपने कम कर दिया। ये सबसे छोटा और सबसे सिंपल सोल्यूशन है, लेकिन आई थिंक आपको यहां तक नहीं रुकना चाहिए। आपको टोटल हीट रिक्लेम करनी चाहिए, मतलब जितनी हीट है उतनी इस्तेमाल करो, पूरी। अब आप कहो नहीं मेरे को तो जरूरत ही आधी की है, बाकी आधे का क्या करूंगा, ठीक है, उसका सोल्यूशन निकालते हैं। अब सपोज मेरी जो कूलिंग है वो हीटिंग से ज्यादा है, तो मेरी अगर 1000 किलोवाट की कूलिंग है और हीटिंग मेरी सिर्फ 200 किलोवाट है, 800 किलोवाट की मेरे पास हीट पड़ी हुई है। और यहाँ पे अगर सपोज मेरे को 1000 किलोवाट की हीटिंग की जरूरत है और 200 किलोवाट की कूलिंग की जरूरत है, तो सिर्फ 200 किलोवाट हीट मैं पिक कर सकता हूँ, बाकी मैं 800 किलोवाट हीट कहां से लाऊं? उसके लिए हम क्या करते हैं साहब, वी कैन मेक सिस्टम लाइक दिस। ये आपका इवेपोरेटिव है, ये आपका 7 डिग्री पानी गया और 12 डिग्री वापस आया, ठीक है, ये सिस्टम काम कर रहा है। और ये आपका गर्म पानी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो सपोज मेरी बिल्डिंग की जो हीट लोड है वो है 300 टन, ठीक है। 300 टन मतलब 1 टन होता है 3.5 किलोवाट, मतलब 1000 किलोवाट की कूलिंग मैं पिक कर रहा हूं, 1000 किलोवाट की कूलिंग कर रहा हूं बिल्डिंग में। तो 1000 किलोवाट की हीट मैंने इधर से पिक कर ली बिल्डिंग से। फिर मैंने अपने हीट सर्किट को पूछा, भाई आपको कितनी हीट चाहिए? उसने बोला भाई मुझे तो 300 किलोवाट चाहिए, तो भाई 1000 में से 300 आपको दे दी, और ये जो 700 किलोवाट है ये मैंने कूलिंग टावर या जियोथर्मल में भेज। और ये जो हीट एक्सचेंजर है, जो मेरा ऑक्सिलरी हीट एक्सचेंजर है, ये मेरा एयर सोर्स भी हो सकता है, ये मेरा वाटर सोर्स भी हो सकता है। और अगर मेरा सिस्टम में हीटिंग की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो मैं जितनी कूलिंग कर रहा हूं वो मेरे को सारी रिजेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसा भी आएगा, कभी टाइम आएगा, कुछ सीजन्स कुछ मंथ्स में ऐसा भी आएगा। और मेरे को सिर्फ हीटिंग की जरूरत है, मेरे को कूलिंग की जरूरत है ही नहीं, तो फिर मैं एनवायरनमेंट में से हीट पिक करके हीट बिल्डिंग को हीट करूंगा, क्योंकि बिल्डिंग में कूलिंग की नीड तो है ही नहीं। ऐसा करने से आप सिस्टम अपना बहुत छोटा कर लेते हो, अपना इजी इंस्टॉलेशन कर लेते हो, मैनेजमेंट इजी होती है, इट कैन अडेप्ट, एंड 50% एनर्जी आप बचा सकते हो। आप मान के चलिए जो भी इस ब्लू लाइन के नीचे और इस रेड लाइन के नीचे, क्योंकि जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है, ये सारी एनर्जी आपने बचा ली। ये जो जितना एरिया है इसके नीचे, ये पूरे साल में आपने इतनी एनर्जी बचा ली, एंड दैट इज अ मैसिव सेविंग। और आपका सीओपी जो आ जाता है सिस्टम का 8 के करीब आ जाता है व्हेन इट इज बैलेंस्ड, 8 के करीब। ये चीज आप वीआरएफ में भी कर सकते हो, नॉट ओनली इन चिलर सिस्टम, नाउ वीआरएफ सिस्टम्स आर अवेलेबल विद द सेम थिंग। हाउ डू वी डू दैट? उसमें ये मेरा स्टैंडर्ड 2 पाइप सिस्टम है कि मेरे को जो कूलिंग के लिए मेरी अलग आउटडोर लगा हुआ है और हीटिंग के लिए मेरा अलग आउटडोर लगा हुआ है। तो ये मेरा हीटिंग आउटडोर लगा हुआ है, इसके साथ ये कॉपर पाइपिंग गई, और ये मेरे इंडोर्स हैं, ये इंडोर्स मेरे कूलिंग के लिए हैं, और ये मेरा आउटडोर। लेकिन जो मेरा साइमल्टेनियस हीटिंग कूलिंग वाला वीआरएफ है, उसमें हीटिंग कूलिंग सेम
सिस्टम से हो जाती है। तो अगर मेरा 20 HP की रिक्वायरमेंट, 10 HP की कूलिंग और 10 HP की हीटिंग की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे को 2 लगाने पड़ेंगे, लेकिन साइमल्टेनियसली वाले में सिर्फ 10 HP के साथ मैं दोनों कर दूंगा, 20 HP की आउटपुट दे दूंगा, बिजली मेरी आधी होगी। ये देखिए, ये 5-5 HP की मेरी हीटिंग हो गई, 5-5 HP की कूलिंग हो गई, 20 HP की आउटपुट, 10-10 HP के 2, यहाँ 10 HP का एक आउटडोर और 20 HP की मेरी आउटपुट। So you are saving this energy straight away on a balanced side. जब अनबैलेंस होगा तो एनर्जी 50 की जगह आपकी 40% सेव हो जाएगी, 30% सेव हो जाएगी, लेकिन 0% से तो ज्यादा ही है ना सर। ये वेरियस आउटडोर्स हैं 8 HP से लेके 16 HP के, और इनकी COP जब 50% कूलिंग और 50% हीटिंग पे काम करते हैं, 7 तक चला जाता है सर, 7 तक। अब नॉर्मली आप जो ऑपरेट करते हो अपने COPs, यू ऑपरेट एट 3.1। डिजाइन प्रिंसिपल क्या है, इसमें 3 लाइंस होती हैं एज कंपेयर टू 2 लाइंस। एक लिक्विड लाइन रहती है, एक लो प्रेशर गैस रहता है, एक हाई प्रेशर गैस रहता है। ये लो प्रेशर गैस और हाई प्रेशर गैस में एक एक वॉल्व रहता है। अगर आप उसको किस मोड में यूज कर रहे हो डिपेंड करता है उसमें कौन सा वॉल्व खुलेगा। अगर आप हीटिंग मोड में यूज कर रहे हो तो ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा, और अगर आप कूलिंग मोड में यूज कर रहे हो तो ये बंद हो जाएगा, ये खुल जाएगा। उसके साथ ये बॉक्सेस लगते हैं जो इंडोर यूनिट्स के साथ जाते हैं। डीसी कंप्रेसर के बारे में आपको सब पता है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा। बड़ा प्रिसाइज कंट्रोल रहता है इसमें, आपको किस पार्ट में हीटिंग चाहिए, किस पार्ट में कूलिंग चाहिए, वो सब बैलेंस करता रहता है। ये सेल्फ बैलेंसिंग सिस्टम है और आपको ऐसे लगाना चाहिए। इससे आप गर्म पानी भी निकाल सकते हो। जब आप कूलिंग मोड पे चलता है तो लिक्विड लाइन चलती है और लो प्रेशर गैस लाइन चलती है, तो ये वाला वॉल्व खुल जाता है, ये वाला वॉल्व बंद रहता है। हाई प्रेशर लाइन भी कनेक्टेड होती है इसके अंदर, बॉक्स के अंदर होती है, लेकिन वो बंद होती है। तो वो इस बॉक्स में ये 2 लाइनें कनेक्ट होती हैं टू द यूनिट। ये वाली लाइन कॉमन होती है दोनों के लिए। तो ये वाली लाइन में ये लिक्विड लाइन आती है इसमें, और इसमें लो प्रेशर गैस बनके ये चली जाती है और ये कूलिंग करता रहता है। जब ये हीटिंग मोड में चलता है तो ये वाला वॉल्व बंद हो जाता है, ये खुल जाता है, ये हाई प्रेशर गैस इसमें आती है और ये लिक्विड लाइन में मिक्स हो जाता है। तो लिक्विड लाइन फ्रॉम कूलिंग एंड हीटिंग साइड्स गेट मिक्स्ड इन दी कॉमन लाइन। के पाइपिंग कनेक्शन ऐसे होते हैं। इसका एक बॉक्स होता है जो कि आप इंडोर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो, वो उसके साथ एक 4 आउटडोर यूनिट कनेक्ट हो सकते हैं सिंगल सिस्टम में, और 64 यूनिट्स वाला भी मिलता है आपको एक ही बॉक्स के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो कूलिंग मोड में देखिए, ये आपके कंडेंसर्स हैं, ये आपका कंप्रेसर है। तो सिर्फ सारे यूनिट सपोज हमारे कूलिंग मोड पे चल रहे हैं, तो ये कूलिंग मोड में ये आपका कंडेंसर के बाद ये आपका ये जो आपका DX यूनिट है, आपका एक्सपेंशन वाल्व है, उसके बाद लिक्विड लाइन आगे गई, लिक्विड लाइन के बाद वो लो प्रेशर गैस बनके, तीनों में से लो प्रेशर गैस बनके ये वापस आ गई कंप्रेसर में, कंप्रेसर ने उसको हाई प्रेशर गैस कर दिया, कंडेंसर में हीट रिजेक्ट हो गई। ठीक है, तो ये तीनों यूनिट इस वक्त कूलिंग में चल रहे हैं। अब इसमें कूलिंग ज्यादा हो रही है, 2 यूनिट में कूलिंग हो रही है और 1 यूनिट में हीटिंग हो रही है। अब देखते क्या होता है। तो क्या हो रहा है सर, जो कूलिंग हो रही है वो जो इसमें से जो आ रहा है आपके पास लिक्विड, ये लिक्विड ये गैस लो प्रेशर गैस बनके यहाँ कनेक्ट हो जाता है, और ये लो प्रेशर गैस आपका कनेक्ट होके ये कंप्रेसर में जाता है जो हाई प्रेशर गैस देता है, और वो जो हाई प्रेशर गैस है आपका वो इस सिस्टम में चला जाता है और वो लिक्विड लाइन के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो हाई प्रेशर गैस इसके अंदर चली गई और वो लिक्विड लाइन में ये मिक्स हो गई। तो लिक्विड इसमें से लिक्विड लाइन गया और इसमें लिक्विड लाइन अंदर चली गई और वहां से भी आ गया। तो कई पॉइंट पे तो कंडेंसर पूरी तरह अवॉइड ही हो जाता है और कई जगह नहीं होता है। तो ये कूलिंग प्रोसेस और हीटिंग प्रोसेस साइमल्टेनियस हो गए। अब हीटिंग ज्यादा डोमिनेंट हो गई, कूलिंग कम हो गई, एक जगह कूलिंग है, 2 जगह हीटिंग है, तो उसमें भी ये लाइन अपने आप को, जो आउटडोर है वो आपका कंडेंसर की जगह वो अब इवापोरेटर बन जाता है कि वो हीट पिक कर रहा है, क्योंकि हीटिंग की ज्यादा जरूरत है। इससे हीट जो मिल रही है वो इसके लिए काफी है, लेकिन इस यूनिट के लिए फिर वो ये काम करने लगता है, और आपकी जो गैस है वो हाई प्रेशर गैस इन दोनों में चली जाती है, और इसमें से जो लिक्विड निकलता है वो लिक्विड इसमें जाके वो लो प्रेशर गैस होके फिर वो इसके अंदर अपने इवापोरेटर में हीट पिक करके वापस आ जाता है। हीटिंग मोड में अगेन द एंटायर जो आपकी कॉइल है बाहर वो पूरी इवापोरेटर बन जाती है, कंडेंसर नहीं रहती है, और
लिक्विड लाइन इसमें आती है और लिक्विड लाइन से उसके बाद वो कंप्रेसर में जाके यहाँ पे गैस, लो प्रेशर गैस बन जाती है, लो प्रेशर गैस से वो हाई प्रेशर गैस में, तीनों में जाके फिर लिक्विड लाइन इवापोरेटर में चली जाती है। Now I'll give you an example जो हमने एक सिमुलेशन करी थी कि एक बड़ा हॉस्पिटल है जिसमें एग्जिस्टिंग 4000 टन की एयर कंडीशनिंग हुई हुई है और उसमें उसने हीटिंग लगा रखी है 6 लाख किलो। तो यहीं पे मुझे प्रॉब्लम है साहब, ये बॉयलर क्यों लगा हुआ है? 1000 टन is 3500 kilowatts which is equivalent to this much kilocalories, और वो ही एक मशीन ही इसकी पूरी हीटिंग रिक्वायरमेंट कर लेती है। तो यहाँ पे अगर साइमल्टेनियस हीटिंग कूलिंग का एक यूनिट, 4000 टन के 1000 टन के 4 लगे होंगे, अगर 1000 टन का एक इसके साथ लग जाता तो क्या सेविंग होती देखते हैं। ये उनका करंट इलेक्ट्रिसिटी बिल है, 12 करोड़ रुपए वो देते हैं 8 महीने का कूलिंग के लिए, और करीबन 90 लाख रुपए डीजल के लिए देते हैं, क्योंकि वो उन्होंने बहुत ही स्मार्ट सिस्टम जो लगा रखा है, हमारे को जो सिखाया गया था कि भाई हीटिंग के लिए तो आप हॉट वाटर जनरेटर लगा लो। विंटर में भी वही बात, 2 करोड़ की कूलिंग हो रही है, क्योंकि विंटर में भी ओटीज में कूलिंग की जरूरत होती है, और डीजल 80 लाख रुपए का इनको डीजल यूज करते थे और ये हॉट वाटर जनरेट होता है। तो ये इनका करंट खर्चा है। फिर हम अगर सिमुलेट करते हैं इसको, भाई हमने ये हटा के 4000 की जगह 3000 टन का नॉर्मल चिलर लगाया और 1000 टन का हमने साइमल्टेनियस हीटिंग कूलिंग लगा दिया, तो फिर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी डीजल का जो खर्चा है वो करीबन कितना कम हो जाता है, यहाँ से 90 लाख से ये 10 लाख रह जाता है, और 80 लाख से ये सिर्फ 5 लाख रुपए रह जाता है। तो जो साल की सेविंग है इनकी 1.1 करोड़ है, 1.55 करोड़ है, और इस पे अगर वो चेंज करेंगे 1000 टन का जो सिस्टम है उसको साइमल्टेनियस हीटिंग कूलिंग को लगाएंगे तो उसका खर्चा आएगा 1.1 करोड़। तो 9 महीने में पेबैक आ जाएगा, और 25 साल में सर ये 40-50 करोड़ रुपए बचा लेंगे लाइफ ऑफ द सिस्टम। 9 महीने में पेबैक आ जाएगा, बहुत बड़ा टाइम नहीं है। और हर साल अगर आपको 1.5 करोड़ रुपए की एडिशनल सेविंग हो रही है, मैं एनवायरमेंट डैमेज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पानी की सेविंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक फ्रॉम अ कॉस्ट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो सिर्फ मेरी बुक्स में 1.5 करोड़ रुपए का सेविंग्स होगा। तो ये जो साइमल्टेनियस हीटिंग कूलिंग है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हर बिल्डिंग में जरूरत होती है, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, लेकिन जितना भी आप सेव कर सकें प्लीज डू इट। और जब भी आपकी साइमल्टेनियस लोड अगर आपके बैलेंस है, जैसे प्रोसेस इंडस्ट्री है, तो सोने पे सुहागा, बहुत ही सिंपल सिस्टम लगेगा और आपको इतनी सेविंग मिलेगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। और जहां वेरिएशन भी है वहां पे भी 30 to 40% सेविंग साल की आराम से मिल जाती है। तो जैसे इशरे के लोगों में लिखा हुआ था कि अपनी पृथ्वी को प्लीज बचाइए, अपने पर्यावरण को प्लीज बचाइए, और ये बचाने का एक ही तरीका है परिवर्तन, अपने डिजाइन में परिवर्तन लाइए। Thank you so much. Samta ji, Purnima ji, I'm done. Yes, sir. Okay. Yes. Okay. Thank you so much, Jagdeep, for such an enlightening and knowledge-enhancing session. In fact, I also learned a lot, and well conducted so well by you. And I'm sure our audience here today also would have been extensively benefited by the information and the concepts shared. So again, I'll take this opportunity on behalf of ISHRE to thank Mr. Jagdeep for taking out time from his busy schedule and putting in great efforts for this session. And of course, thank you all the audience for attending this session. Wish you all the best. Thank you. Thank you, Samta. अगर कोई क्वेश्चंस हो किसी के तो मुझे बता दीजिए, मैं कोशिश करूंगा उनको आंसर करने की। Sir, I think there is one question from Prakash Lohia. What is the refrigerant being used in heat pump? इसमें हमने R134A यूज किया है। That can operate at high temperatures also. There are other refrigerants also that we use, but for this R134, for this application R134A was okay. For जो example मैंने आपको दिया था जहाँ पे हम hot water generate कर रहे थे using the building cooling with जो VRF की जगह था, तो उसमें हमने 410 यूज किया था। HFO यूज हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, उसकी हमको प्रॉपर्टीज देखनी पड़ेंगी, एंड
we have to see how it is performing at what temperatures. So there are various options available. आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से रेफ्रिजरेटर्स हो सकते हैं. आई एम नॉट श्योर R32 यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे किसी प्रोजेक्ट में यूज नहीं हुआ, मुझे चेक करके आपको बताना पड़ेगा. एनी मोर क्वेश्चन सर? आई होप आप लोग बोर नहीं हुए. Sir. जी पूर्णिमा जी, कैन वी देन क्लोज द सेशन? And I think one more question is there. 3, sir. 4, हाँ. और क्वेश्चंस हैं क्या? कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं. I think we will take 5 minutes more. Capacity range, sir. Capacity range varies from 5 tons to 500 tons or 1000 tons also. वो modules में लग जाते हैं. What heat exchanger do you use? Sir, जो heat exchanger shell and tube और PHE दोनों यूज होते हैं, लेकिन जो इक्विपमेंट के अंदर शेल एंड ट्यूब यूज होता है. अगर एयर सोर्स हीट एक्सचेंजर है, देन इट इज with a copper tubing and aluminum fins. Can we integrate with solar water heater? Come again, sir? Can we integrate with solar water heater? Yes, we do it a lot. In fact, ले में जितने projects हम कर रहे हैं, we are doing it with integration with solar water heater. बहुत करते हैं इसको. उसको हम सोलर से जो भी हमें हीट मिलती है उसको हम बोनस ले लेते हैं. May I ask your contact? I think contact details already आपने show किया. Again, you can share your slide with contact detail. मैं contact detail. एक मिनट में आपको दोबारा से और सुना दूँ. Life expected is if it is a water source system about 30 years, if it is an air source system about 15 to 20 years, depending on the pollution of the city. Please share your contact details. मैं दोबारा वो share कर दूँ screen? जी. So here is the contact detail of Mr. Singh. Email is jagdeep.singh@eucotechgroup.in. Mobile number is 9810134084. So you can contact after this workshop anytime. Any final words you can say, sir, or then after we will close the. बस मैं ये कहूँगा कि आप लोगों में से जितने लोगों ने अटेंड किया आज, अगर एक आदमी भी अपने सिस्टम में ये एनर्जी बचा लेता है तो टुडेज कॉन्फ्रेंस इज अ सक्सेस, अदरवाइज इट इज अ फेलियर. तो मेरी रिक्वेस्ट है, इस कॉन्फ्रेंस को सुपर सक्सेस बनाइए और ये टेक्नोलॉजी ज़रूर इस्तेमाल कीजिए. एंड इट विल नॉट ओनली सेव मनी फॉर यू, इट विल सेव अर्थ फॉर योर एंड माई चिल्ड्रन. I think then we have done for the day, and we will request again in future, sir, for this kind of workshop. Thank you so much. Thank you for thank you for calling me and inviting me to make this talk. I hope आपको भी interesting लगा हो और आप बोर ना हुए हो. बिल्कुल सर, सभी ने इतने सारे सवाल पूछे. That means it shows that everybody taken interest on your lecture, and this is a DL lecture जो normal workshop से there is level difference है DL का. So hope
कि आपका सपोर्ट इस तरह मिलता रहे फॉर नियर फ्यूचर एंड हम लोग अच्छे and one more request ki we want the topics from the audience side also. You can send your topic at info@dcisre.org or executive.secretary@dcisre.org. We'll consider this, we'll discuss the committee which topic will be the better, because क्या होता है कि we are doing our own research कि कौन सा topic है, but audience participation is as much important as ours. So we'll make that topics also जो हमारे priority में maximum request आएंगे, we will make the webinar or workshop on that also. And of course, one more announcement is there that we are coming shortly with Vendcom. That is our national flagship event that is happening on Hotel The Grand, Vasant Kunj, and date is 8th of October. And it will gather, I mean, this is the national program, so it will gather all over the community like consultant, contractors, government officials, architects, builders. के बारे में जानता हूँ यार, मैं कई बार ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में रहा हूँ. हाँ, करेक्ट सर. ऑडियंस के लिए बोल रहा था सर, तो आप पार्ट ले. आई थिंक आप तो सर इसरे को काफी आपने सपोर्ट करा. यू आर द पास्ट प्रेसिडेंट और नेशनल कमेटी में भी हो, तो एवरीथिंग इज. आई एम सॉरी, आई थॉट यू वर एड्रेसिंग मी. प्लीज. तो बेसिकली शॉर्टली विल सर्कुलेट द रजिस्ट्रेशन लिंक आल्सो फॉर द डेलीगेट एंड ऑल. तो जो भी आपको मिलता है, यू कैन रजिस्टर है. देयर इज अर्ली बर्ड डिस्काउंट फॉर द delegates also. And apart from that, we are running the membership drive, as you know. आपको membership का जो भी mails आता है, it's a request that आप हमें join करें, because this is the only things that we expect from your side. It's your society and your I think आप जितना इसमें जुड़ोगे, we'll feel like we are boosting ourselves or making stronger time to time. So it's the only thing, the way we can embellish ourselves and yourself also. And I think ISRE is the platform who can no one can compete us right now in this field of HVAC and R. And this provides you the networking opportunities in physical event like other games program bhi hote hai. Jaise we are organizing a cricket also in 5th, 6th and 12th of November. So games bhi hai, technical programs bhi hai. Every field we are, and for more information you can go to our website dcisre.in or headquarter की website पे भी जा सकते हो. There is a link for joining ISRE. बस आपको Delhi chapter of ISRE select करना है. There will be option to join ISRE. There are nominal amount of fees, and fee membership categories are 3 years and 10 years basically. So whatever suits you, you can join us, and I mean, you can be the part of ISRE through this way. So thank you very much. Thank you, Santam. Thank you, Jagdish sir. Thank you, Samtaji, for giving the introduction and being there. Thank you so much. So with this note, we are going to close this session for the day. Thank you so much. Thank you.